Hi students, today we'll be looking at sum number 7 of practice set 1.4. Practice set 1.4, sum number 7. Okay, it's an activity based question wherein certain blanks are given to you and you need to fill it out. But students, what I'll be doing is I'll be teaching you the whole sum, and then based on that sum you choose the suitable values to be put there. Okay, so see, so let me draw the figure for you. So DEF is a triangle, PQF is another triangle. Okay children, so this is your figure, and what is being given to you is you have been given that PQ is parallel to DE. So this is PQ, segment PQ, which is parallel to DE. So I can make an sign here like this, parallel sign. So PQ is parallel to DE. Area of triangle PQF is given to you as 20 units. So this triangle PQF, this triangle, the area is given to you as 20 square units. Okay children, it should be square units. In textbook they have written 20 units. So 20 square units. Then you have the value of PF as 2dp. You have been given that PF is twice dp. Okay, and based on this given information you need to find the area of quadrilateral DPQE. Okay, so see children, how are we going to do the solution? See, to find the area of quadrilateral Q, to find the area of quadrilateral DPQE, to find the area of quadrilateral DPQE, first I need to find the area of quadrilateral DEF. If I have the area of quadrilateral DEF, then I'll subtract PQF area in this larger triangle so that I can get the area of this quadrilateral. Okay, you got my concept? What I need to do is, I need to find the area of the larger triangle. I have already been given the area of smaller triangle. So if I subtract the area of larger triangle by smaller triangle, I'll be getting this area. So my aim is to find area of larger triangle. But how am I gonna do it? So initially we all know that we have been given that PF is equals to twice dp. Okay, say smaller triangle and larger triangle. If I have the ratio of smaller triangle and larger triangle, if I have the ratio of areas of smaller triangle and larger triangle, it will be easier for me to find the area of larger triangle, because already I have been given with the area of smaller triangle. So smaller triangle का PF
और लार्जर ट्रायंगल का डी एफ का रेशियो अगर मेरे पास होता तो मैं इजीली ये बड़ा ट्रायंगल का एरिया ढूंढेगा, क्योंकि तुमको पता है बाय थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो जैसे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ will be equal to what? The ratio of sides of squares, the ratio of squares of sides. तो यहाँ पे PF का वैल्यू, PF और DF का अगर रेशियो मेरे पास होता, PF और DF का अगर रेशियो होता मेरे पास, ऑलरेडी मेरे पास PQF का एरिया है, और अगर मेरे पास PF DF का भी रेशियो होता तो मैं इजीली बड़ा ट्रायंगल DEF का एरिया ढूंढ के निकाल सकता है। तुमको समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसको यूज़ करके PF और DP को यूज़ करके मुझे यहाँ पे PF और DF का रेशियो चाहिए। तो देखो कैसे करोगे तुम। अब मैं क्या करूँगा, आई टेक सी PF इज इक्वल्स टू ट्वाइस DP। तो मैं यहाँ पे लेट DP बी इक्वल्स टू x। अगर DP x है तो PF क्या हो जाएगा, PF विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स DP मीन्स 2x हो जाएगा, बराबर। तो DF क्या हो जाएगा बोलो, DF विल बी इक्वल्स टू DP प्लस PF। रीज़न देना है तुमको D डैश P डैश F। तो DF क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा DP कितना है x, PF कितना है 2x, तो DF क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा 3x, राइट ना। देखो अब हमने किसका वैल्यू निकाला, हमारे पास DP का वैल्यू है, PF का वैल्यू है और DF का वैल्यू है। तो देखो अगर हमने ये अप्लाई किया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF 20 स्क्वायर यूनिट्स है अपने पास, PF अपने पास है 2x और DF है अपने पास 3x। ऊपर का x नीचे का x कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा रेशियो। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके DEF ढूंढ के निकालेंगे और DEF मिल गया तो DEF में PQF का एरिया सबट्रैक्ट किया तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमको मिल जाएगा। अब वी फिनिश्ड वन पार्ट, ठीक है, DF हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, DF मिलने के बाद हमको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कौन सा ट्रायंगल, समझो PQF, ट्रायंगल PQF, इन ट्रायंगल PQF एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में एंगल F कॉमन एंगल है, मतलब एंगल PFQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DFE, ठीक है। दिस इज व्हाट कॉमन एंगल, बराबर ना। देखो ये एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। यू कैन टेक दीज टू एंगल्स और यू कैन टेक दीज टू एंगल्स, समझ रहे हो। तो समझो मैंने लिया एंगल, समझो ये एंगल लिया तो ये एंगल का नेम समझो मैंने QPF दिया, एंगल QPF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDF। अब रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस। कौन है पैरेलल लाइंस इधर, PQ एंड DE। कौन है ट्रांसवर्सल, DF। तो लिखना है DF इज ट्रांसवर्सल। Therefore, triangle PQF will be similar to triangle DEF. By which test of similarity? By AA test of similarity. अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते by theorem on areas of similar triangle,
थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या बोलता है? थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ये बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF upon area of triangle DEF means the ratio of areas of any two triangles will be equal to what? The ratio of squares of their sides. तो ये क्या हो जाएगा? PF square upon DF square. बराबर. बट अपने पास PQF, एरिया ऑफ PQF कितना है? 20 स्क्वायर यूनिट्स है, तो मैं लिखेगा 20 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आएगा इक्वल टू PF हमको क्या मिला है? 2x, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन DF क्या मिला हमको? 3x, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा. तो 20 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF will be equals to what? It will be equals to 4x square upon 9x square. x square कैंसिल कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 20 into 9 will be equals to 4 into area of triangle DEF. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या हो जाएगा? 20 into 9 upon 4. 4 5 20 to 9. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हो जाएगा 45 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, तो ये पूरा हमको कितना मिला? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 45 स्क्वायर यूनिट्स मिला. ठीक है, अब ये पूरा मिलने के बाद लेकिन हमको ढूंढना क्या है? देखो, हमको ढूंढना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल. मैंने तुमको बोला बड़ा ट्राइंगल का एरिया छोटे ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल मिलेगा. तो मैं लिखेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF. एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना है? 45 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF कितना है? 20. 45 माइनस 20 कितना हो गया? 25 स्क्वायर यूनिट्स हो गया. दिस इज योर आंसर. आई होप चिल्ड्रेन 2-3 बार वीडियो देखो, तुमको पक्का समझ में आ जाएगा. अब सेम ये सम रिलेटेड मैं तुमको 2 सम्स आई विल बी गिविंग यू एज एन होमवर्क. Now why I want you to solve the sums? खुद पर्सनल लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, तब जाके तुम लोग खुद से जब रीजनिंग करोगे तब तुम लर्न करोगे. तो इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू ट्राई some sums of yourself. Okay, thank you so much.